Anyone have any doubt? You can speak. If you have doubt, you can ask. Or shall I continue our lecture? Shall I continue our lecture? Yes, sir. Okay. In the previous class, we start with the Carnot engine. Okay. We start with a Carnot engine. Okay. Carnot engine. Carnot engine is a special type of engine. This engine is called to be the perfect engine. Perfect engine or the ideal engine. Is this okay? Carnot engine is called to be the perfect engine or the ideal engine. If someone asks you that why Carnot engine is called to be the perfect engine or the ideal engine, can anyone give me the answer? Why Carnot engine is called to be the perfect engine or the ideal engine? Can anyone give the answer? Carnot engine is called, no, its efficiency is not 100%. अभी तक इस दुनिया में जो भी इंजन बनाया गया है सबसे मैक्सिमम इफिशिएंसी जो है, सबसे मैक्सिमम इफिशिएंसी किसका है? कार्नोट इंजन का है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनाया गया है जिसका कि इफिशिएंसी क्या हो, कार्नोट इंजन से ज्यादा हो। हर एक इंजन की इफिशिएंसी क्या होगा? कार्नोट इंजन से कम ही होगा। ओके, all the engines that present in the world, their efficiency is always less than that of the Carnot engine. That's why Carnot engine is also called to be the perfect engine or the ideal engine. Is this clear? दुनिया में जो भी इंजन उठा लो, चाहे ऑटो डीजल इंजन उठा लो, चाहे पेट्रोल इंजन उठा लो, कोई भी इंजन, ठीक है, हर एक इंजन का क्या होगा? इफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? यस और नो? यस, यू कैन स्पीक। ओके, नाउ व्हाट इज एक्चुअली कार्नोट इंजन? व्हाई? ऐसा क्यों है कि कोई भी इंजन दुनिया में ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कार्नोट इंजन से उसकी इफिशिएंसी ज्यादा हो? व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड दिस? तो मेन कॉज क्या है इसके पीछे? मेन कॉज क्या है कि जब हम लोग कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ एजम्पशन कंसीडर करके चलते हैं। कुछ एजम्पशन कंसीडर करते हैं और ये एजम्पशन है क्या? जो फर्स्ट एजम्पशन है ये क्या बोलता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड piston will be neglected. Is this clear? सपोज करो ये मेरा क्या है? पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, इज दिस ओके? ये मेरा क्या सिलेंडर है, ये क्या पिस्टन है। अब देखो पिस्टन क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा, मींस टू और फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगा। जब पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगा तो सिलेंडर और इस पिस्टन के बीच में क्या होंगे? बिकॉज ऑफ द मोशन देयर विल बी फ्रिक्शन and friction is a type of loss, but in the case of Carnot engine we have already considered that there is no friction between this cylinder and the piston. Is this clear? Is this clear? Sir, which type of loss
Due to friction is there. I'm talking about friction. In the case of the friction, suppose you rub your hand, there is a friction between your hand, yes or no? Yes, sir. Now tell me, when you rub your hand more than 10 times or more than 5 times, what will you observe? सर हीट जनरेट होता है हाथ. Heat will be generated. That means this is the loss. From where this heat is generated? ये जो heat generate हुआ, ये heat कहाँ से generate हुआ है? Particles of the palm. क्यों? Because of the friction. Yes. तो ये heat क्या है? One type of loss है. Means अगर ये जो piston और cylinder जो move करेगा, reciprocate करेगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा? Heat generate होगा. And that is the loss. So we already consider that the friction is neglected between the piston and the cylinder. Is this clear? Yes. Okay. Now, what will be the second assumption? The second assumption is that we neglect all heat loss. Okay. How? By making the surrounding insulating. Is this clear? By making the surrounding insulating. Is this clear? Suppose करो हीट लॉस क्या है. अब सिंपल चीज बताओ, अगर इस सिलेंडर का टेम्परेचर हाई होगा, ये रेडिएशन करेगा या नहीं करेगा? दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर Yes. 0 केल्विन से ज्यादा है, वो सारा ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेडिएट करता है. तो ये रेडिएशन क्या है? ए टाइप ऑफ लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट. इज दिस क्लियर? Radiation is a type of loss in the form of heat. So, while making the Carnot engine, we already consider that there is no heat loss in the form of radiation or any loss. Is this okay or not? Yes, sir. अब देखो, सर आवाज कट हो रहा है. Yes, आवाज कट हो रहा है सर. आप अभी भी कट हो रहा है क्या? अभी भी कट हो रहा है? अभी आया. अभी आया. देखो, कभी एक चीज ऑब्जर्व किया हो, जब तुम लोग पब्लिक बस में ट्रेवल किए हो? हाँ जी. यस. जब पब्लिक बस में जब ट्रेवल करते हो, ड्राइवर के जो जस्ट बगल वाला सीट होता है, कभी उस पर बैठे हो? हाँ सर. उसके नीचे से बहुत सारा हीट आता है. Yes. यस. वो क्या है? इंजन है. उसके अंदर में इंजन है. इंजन क्या कर रहा है? हीट डिसिपिएट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है. वो क्या एक टाइप ऑफ लॉसेस है या नहीं है? हाँ? Is this a type of loss or not? Tell me. Heat loss. Chapter name? चैप्टर नेम किसको नहीं पता है? मुझे कोई मैसेज कर रहा है कि सर चैप्टर नेम क्या है. मैं चैप्टर को खत्म करने पे हूं, अभी आप लोग पूछ रहे हो चैप्टर नेम क्या है. अच्छा मजाक कर लेते हो भाई. ठीक है. देखो, आज मैं ये मेरा एक दूसरा क्लास है, इसमें फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में कुछ उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछ के ना डिस्टर्ब मत करो. ठीक है? फिर मेरा लिंक टूट जाएगा. इज दिस ओके? ठीक है. चलो, तो अब देखो क्या होता है. हम लोग कोई चाहेंगे कि वो लॉस हो? नहीं. तो देखो, जब भी हम लोग कार्नोट इंजन बना रहे हैं, तो सारे लॉस को हम लोग क्या किए? Hello. सर आप अनम्यूट हो गए.
सर आपने हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके, अब आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? ये हाँ यस सर यस यस सर सर। ऑटोमेटिक होता है या कोई कर देते हो? सर वो कनेक्शन नहीं नहीं रहता है ना तो हो जाता है। अच्छा, सर आप लीव कर दिए थे। नहीं यार, मैं क्यों लीव करूंगा? क्लास लीव। अरे नहीं, नेट सर नेट का रेंज नहीं मिलता ना तो हो जाता है ठीक है, अपने आप। अरे रेंज चलो। वेंज का कोई सीन। अच्छा भाई छोड़ दो ना, जो हो गया हो गया, अब पढ़ लेते हैं ना, ठीक है? इज दिस ओके? चलो, shall I यस start सर। the class? Shall I start the class? यस सर। Okay. ये तो देखो, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉस होते हैं, लेकिन जब हम लोग ने कार्नोट इंजन को बनाया, जब कार्नोट इंजन को फॉर्म किया गया, तो क्या किया गया? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है अभी भी जब कार्नोट इंजन बीच को बीच में बनाया, सर। जब कार्नोट, बेटा तुम्हारा भी नेट खराब हो सकता है ना, ठीक है? जब देखो, जब कार्नोट इंजन को बनाया गया तो सारे लॉस को क्या किया गया? ये ट्राई किया गया कि लॉस जितना भी हो सबको बंद किया जाए, ठीक है? तो इस कारण मेरा जो कार्नोट इंजन बनाया गया, वो कार्नोट इंजन क्या बना? जिसका मैक्सिमम इफिशियंसी हुआ। आज तक दुनिया में जो भी इंजन है, किसी का भी कार्नोट इंजन से ज्यादा इफिशियंसी नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? अब देखो, ये जो कार्नोट इंजन बनाया गया था, वो NL सादी कार्नोट के द्वारा। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे जो कि 1824 के आसपास सबसे पहले कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट रखे थे। इट इज ओके? ओके, अब देखो, जो कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, 4 प्रोसेस। चढ़े है यार। हाँ जी, कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन गिव द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? Can anyone give me the name of the process? Nitin, Anand. सर आइसोथर्मल एक्सपांशन, Yes, the first process is एडियाबैटिक called, प्रोसेस, yes, isothermal expansion. And the second process is एडियाबैटिक एक्सपांशन, adiabatic expansion. And the third process is आइसोथर्मल isothermal कंप्रेशन, compression. And the fourth process and the last process is adiabatic Compression. compression. Okay, always remember that the adiabatic expansion or adiabatic process is also called isentropic process, where S is equal to constant. That means an entropy will be constant. Is this okay? When S is equal to constant, that process is called isentropic process. So adiabatic process is also called isentropic process. It is clear? Now, for isothermal process, temperature will be constant. For adiabatic process, there is no heat transfer. Okay, means Carnot engine consider two pair of isothermal process. That means 2 pair of constant temperature process and 2 pair of adiabatic process. Means there are 2 processes that involves in this Carnot engine where the heat transfer is 0, or there is no heat transfer. It is okay? Is this okay or not? यस सर। Okay. Isothermal expansion. Yeah. Okay. Now I will share a video with you. Okay. यस सर। Okay. Let's see the video.
देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, पिस्टन क्या कर रहा था, फ्रिक्शन नहीं। Sir, pressure there. देखो ये जो पिस्टन है ये क्या कर रहा था, इस सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म कर रहा था। इट इज ओके। यस सर, हाँ यस सर। जब ये पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगा तो क्या हुआ, देयर इज अ फ्रिक्शन दैट विल क्रिएट बिटवीन द सिलेंडर एंड द पिस्टन। तो उस फ्रिक्शन को हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। इज दिस क्लियर? मींस हमने इस डिवाइस को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया कि जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई फ्रिक्शन क्रिएट ही ना हो रहा हो। इट इज ओके? इट इज ओके और नो? बेटा बोलो। Yes, sir. ओके Yes. ओके। ओके देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस था वो क्या था, मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, पीवी कर्व है। इज दिस ओके? अब यहाँ देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 V1, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P2 V2। लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होंगे, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। मींस जो स्टेट 1 का टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, स्टेट 2 का टेम्परेचर होगा। इज दिस क्लियर? मींस टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2। इज दिस ओके? इसलिए हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्या बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला। यहां तक किसी कोई डाउट? सर एक बार वापस बताओ ना ये। मैंने क्या बोला, देखो जो ये क्या स्टेट है, यहाँ पे मानो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ये क्या है, स्टेट 2 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कैसा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, मतलब क्या, सपोज करो ये अगर मेरा सिलेंडर है तो इसके अंदर का जो पिस्टन होगा ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक्सपेंशन कब होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा तब एक्सपेंशन होगा या ये पिस्टन नीचे आएगा तब एक्सपेंशन होगा? टेल मी। ऊपर जाने पर। हाँ, ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पे जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसके अंदर का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। होगा, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, Yes, sir. एक्सपेंशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये तो कब हो रहा है, जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो जो ये पहला प्रोसेस है 1 to 2, ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का Isothermal. प्रोसेस है। मतलब क्या, यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट है। इट इज क्लियर? यस सर। ओके, नाउ isothermal means no change in temperature. Okay, look at look here what happened। ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या, फर्स्ट प्रोसेस, जब भी आप कार्नोट इंजन को पढ़ोगे, कार्नोट इंजन में कंपोनेंट क्या होते हैं इसके,
पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सोर्स। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? सिंक। एंड चौथा कंपोनेंट क्या होता है? इंसुलेटर। इट इज ओके। Yes, sir. Yes. देखो ये सोर्स क्या होता है? जिसका टेम्परेचर TH होता है और हाई टेम्परेचर होता है। मीन्स हमको देखो इसमें क्या है? आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है, इसके अंदर परफेक्ट गैस है, और परफेक्ट गैस क्या है? वर्किंग गैस है। इज दिस ओके? अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। Yes. ये सिलेंडर का बेस है, और जो सिलेंडर का बेस होता है उसको हम लोग डाइथर्मिक वाल बनाते हैं। मीन्स क्या? सिर्फ वन वे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होता है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग। चलो ये चीज छोड़ दो, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मानो ये मेरा क्या है? सोर्स है। अब हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट प्रोसेस में इस हीट सोर्स को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, सिलेंडर के कांटेक्ट में लाएंगे। अब देखो जो सिलेंडर का टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? सिलेंडर की टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? सराउंडिंग नो, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। सराउंडिंग पूरे क्या? इंसुलेटिंग किया गया है, तभी तो हीट लॉस नहीं होगा ना। इट इज ओके। यस सर। पूरे इंसुलेटिंग किया गया है। अब हम क्या करेंगे? इस हीट सोर्स को इस सिलेंडर के कांटेक्ट में लाएंगे। जब हीट सोर्स सिलेंडर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? हीट सप्लाई होगा। इज दिस ओके? हीट सप्लाई होगा। जब हीट सप्लाई होगा तो हमने एक क्लास में देखा था लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। तो ये हीट क्या करेगा? जो इसके अंदर जो गैस है, जो वर्किंग गैस है, इस वर्किंग गैस का क्या करेगा? एक्सपेंशन करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग Yes. जानते हैं जब मॉलिक्यूल के बीच में हीट सप्लाई करो तो क्या होता है? गैप इंक्रीज होता है, दूर दूर जाते हैं, कॉलिजन इंक्रीज होती है। इससे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन से यहाँ पे क्या होगा? ये गैस क्या करेंगे? अब देखो ये जो इसका पिस्टन है ये क्या? मूवेबल है, इट कैन मूव। जब ये मूव कर सकता है क्या होगा? ये एक्सपेंशन कर, इस पे क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा सिलेंडर का। और हम लोग जानते हैं कि वर्किंग गैस, परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू MRT और PV इक्वल टू NR/T। NRT. Is it okay? There is difference between these two. Okay. Now, from this equation can we write that P is inversely proportional to volume when the temperature is constant? Is this okay or not? Yes, sir. Okay. Okay. Now यहाँ पे क्या होंगे? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इज दिस ओके? Yes, sir. फर्स्ट प्रोसेस में किसी कोई डाउट? No, sir. नो। तो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है? आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट को ऐड कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्रोसेस। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके और नो? Yes, sir. नितिन आपने नहीं समझा? नितिन shall I repeat? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। बेटा ये चीज मैं कल भी थोड़ा बहुत बताया था। मैं क्या बोला? ये सिलेंडर के फर्स्ट प्रोसेस में क्या करो? ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस में क्या करो? हीट सोर्स को इसके कांटेक्ट में लाओ। जब हीट सोर्स को इसके कांटेक्ट में लाओगे तो हीट सोर्स का टेम्परेचर क्या है? इसके अंदर के जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर है, तो हमेशा क्या होंगे? हीट फ्लो करेंगे। कहां से? फ्रॉम द हीट सोर्स टू द सिलेंडर।
ठीक है। अब ये जो हीट सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, जो गैस होंगे, उसका एक्सपेंशन होगा। जब उसका एक्सपेंशन होता है, ये क्या होंगे, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, तो क्या होंगे, इसका अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और हम लोग जानते हैं ये क्या है, परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस है। इसमें क्या होंगे, परफेक्ट गैस इक्वेशन अप्लाई होंगे। और परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो यहाँ से देखो P इज इक्वल टू एमआरटी अपॉन V होगा। अब देखो T क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि मैं बोल दिया फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, मतलब क्या, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे टर्म कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, P is inversely proportional to 1/V, sorry, P is inversely proportional to volume, it is okay। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मानो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Shall I repeat again? Or you understand? Okay. देखो यहाँ पे ये जो गैस था, इस गैस का क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ हीट एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ द गैस व्हाट हैपेंड, द piston of this cylinder will move upward, okay, and when the piston will move upward, what will be there, the volume of the cylinder will increase, means the volume of this part will increase. Now look, the second process, okay, this process, okay, from 2 to 3 means this is the second process. In the first process there is isothermal expansion, and the second process, this is the adiabatic expansion. Is it okay? And now tell me, what does the word adiabatic means? No heat Adiabatic means no heat transfer. Yes, no heat transfer. Okay, means ये जो पिस्टन सिलेंडर था, हमने फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया था, इसके कांटेक्ट में किसको लाया था, सोर्स को। अब हम क्या करेंगे, सोर्स को यहां से बाहर लेके चले आएंगे और इसके जगह पे क्या करेंगे, एक इंसुलेटर था, आपने देखा था ना कि एक इंसुलेटर था, इंसुलेटर क्या करेंगे, बेस के कांटेक्ट में लाएंगे। अब इंसुलेटर क्या करेगा, ना ही हीट सप्लाई करने देगा, ना ही अंदर के हीट को बाहर जाने देगा। इज दिस ओके? इज दिस ओके? Yes, sir. यस। Yes, तो sir. अब क्या होगा, इस समय क्या होगा, जो 2 to 3 प्रोसेस है, इसके अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया था, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर, इसमें क्या था, एक्सपेंशन प्रोसेस कंटिन्यू था। जो फर्स्ट प्रोसेस में एक्सपेंशन हुआ वो क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में कंटिन्यू रहेगा। इट इज क्लियर? कब तक, जब तक ये क्या हो, या तो अपने क्या हो, ये बॉटम डेड सेंटर, ये क्या होता है, BDC, सॉरी ये होता है TDC, टॉप डेड सेंटर, और इसको हम लोग बोलते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। जब तक ये पिस्टन क्या हो, बॉटम डेड सेंटर के पास ना चले जाए या अपने इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर ले। इट इज क्लियर? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। देखो जो फर्स्ट प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा था वो क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में भी एक्सपेंशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये एक्सपेंशन कैसा होगा, आइडियाबेटिक होगा। तो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, हीट का सप्लाई कर रहे थे, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या करना होगा, जो सोर्स था जिससे हम हीट सप्लाई कर रहे थे उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे, इस बेस को क्या करेंगे, इंसुलेटर के कांटेक्ट में लाएंगे।
और इंसुलेटर क्या करेगा, ना ही इस सिस्टम से बाहर हीट जाने देगा, ना ही सिस्टम को हीट लेने देगा। मीन्स Q is equal to 0 in the second process. There is no heat transfer. It is clear? Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे देखो, एक मिनट। देखो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रहा था। सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सबको रिमूव कर दिए और क्या किए, इसके जगह पे इंसुलेटर ले आए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस। आपने देखा क्या हुआ, सारे जो हीट ट्रांसफर कर रहे थे उस सारे को रिमूव कर दिए। किस प्रोसेस में? सेकेंड प्रोसेस में। इज दिस ओके? इज दिस ओके? यस और नो? Yes, sir. अब देखो तीसरा प्रोसेस मेरा क्या था, तीसरा Isot- प्रोसेस क्या था, The compression. आइसोथर्मल कंप्रेशन था। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या किए थे, जो ये सेकेंड प्रोसेस था इसमें क्या किए थे, ये मेरा किसके कांटेक्ट में था सेकेंड प्रोसेस में, Insulator. इंसुलेटर कांटेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, इंसुलेट थर्ड प्रोसेस में 3 to 4 में इंसुलेटर को रिमूव कर देंगे और सिंक, देखा था सिंक, सिंक क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ हीट होता है सिंक में। इट इज ओके। अब हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस में इस सिलेंडर के कांटेक्ट में किसको लाएंगे, सिंक को लाएंगे। ठीक है, अब देखो जब हम लोग सिंक को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा है Yes. compared to the Yes, sir. temperature of the sink. The temperature of cylinder is greater than that of the sink. That means there is a transfer of heat from the cylinder to the sink. Is it okay? Is it okay? There is transfer of heat from the cylinder to the sink, and this process will take place at temperature is equal to constant. That means the rejection of heat takes place from the cylinder to the sinks at constant temperature. Means there is no change in the temperature. अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो कुछ तो होगा, तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जो इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है, जो गैस है, वर्किंग गैस है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, इसका क्या होंगे, इसके अंदर का प्रेशर क्या होंगे, प्रेशर, जब ये क्या होगा, इसका कंप्रेसर नीचे आएगा, सॉरी ये जो क्या कहते हैं इसको, पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखो जब इसके अंदर का, जब हीट तुम बाहर ले जाओ इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, नहीं करेगा। हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, जो दूरियां बना था, डिस्टेंस बना था, वो क्या होगा, ब्रेक होगा और वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर एनर्जी बाहर जा रहा है।
जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो क्या होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कैसे होंगे, ये पिस्टन क्या होंगे, कंप्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, और इस प्रोसेस में क्या होगा, हमें पिस्टन के ऊपर वर्क सप्लाई करना होगा। इट इज क्लियर। कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क सप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन भी होगा, 3-2 प्रोसेस, लेकिन ये हीट रिजेक्शन कैसा होगा, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके कुछ दिखा आप लोग को, इस प्रोसेस को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखा, जो थर्ड प्रोसेस था इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा, मतलब ये जो पिस्टन है क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है, हीट बाहर की ओर सप्लाई हो रहा है। कब, जब इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है, तो क्या होंगे, इसके बीच के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज जाएंगे, इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और हम लोग जानते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो ये 3 to 4 प्रोसेस है, इसमें क्या होते हैं, हीट रिजेक्शन होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। और देखो यहाँ पे ग्राफ को देखो, ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है इस तरह से, मतलब क्या, ऊपर जाने मतलब क्या, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, इधर जाने पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और ऊपर जाने पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर। Yes, sir. नहीं समझ में आया, समझा। इस प्रोसेस को देखो, देखो अब ये लास्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, लास्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था, Adiabatic compression. एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब क्या, ये जो 4 to 1 प्रोसेस है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इस प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में हमने क्या किया था, इस सिलेंडर के कांटेक्ट में क्या लाया था, सिंक को लाया था। तो फोर्थ प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सिंक को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके कांटेक्ट में क्या लाएंगे, इंसुलेटर को। जब हम लोग सिलेंडर के कांटेक्ट में इंसुलेटर को लाएंगे तो क्या होगा, इसका हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट इज क्लियर। और क्या होंगे यहाँ पे, इसके अंदर का ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जो थर्ड प्रोसेस में कंप्रेशन कंटिन्यू हुआ था वो कब तक चलेगा, फोर्थ प्रोसेस तक। क्या होंगे, प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है और वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इज दिस क्लियर। दिस इज द लास्ट प्रोसेस। तो जो भी कार्नोट साइकिल होते हैं उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम विल इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का सप्लाई कर रहे हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द सोर्स। अब ये सेकेंड प्रोसेस है, ये क्या हो रहा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Q बराबर 0 है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन द सेकेंड प्रोसेस। इज इट क्लियर। और इस प्रोसेस में हमने क्या किया,
जो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या लाए थे, सोर्स को लाए थे, सेकेंड प्रोसेस में हमने सोर्स को रिमूव कर दिया और एक इंसुलेटर को क्या किया, इस सिलेंडर के कांटेक्ट में लाया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेटर देयर इज नो हीट ट्रांसफर। इट इज क्लियर और नॉट? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. अब ये क्या है, तीसरा प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। मतलब क्या, अब हम क्या किए, जो इंसुलेटर सेकेंड प्रोसेस में लगाए थे, इस इंसुलेटर को रिमूव किए और इसके जगह क्या लाए, सिंक को लाए। और क्या होगा यहाँ पे, जब हम सिंक को लाएंगे तो जो सिलेंडर में जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो क्या होगा, देयर इज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिलेंडर टू द सिंक। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इधर मूव कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। इज इट ओके? अब जो चौथा प्रोसेस है, अब हमने क्या किया, आइडियाबैटिक कंप्रेशन करवाना है। आइडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से सिंक को रिमूव कर देंगे और इसके जगह पे क्या लाएंगे, इंसुलेटर को लाएंगे। क्या होगा, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो जहां पर भी कंप्रेशन हो, कंप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। जहां पे एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। इट इज क्लियर? Excuse me, sir. It is Yes. this is Dilip, sir. Yes. One boy or one student is there who forgot to write his name or her name. Who is this without name? Third in order, third name in order. Just write down your name. Otherwise, sir, you remove this boy or this student from the class. Please, sir. Okay, sir. Is this clear? Now tell me, what Yes. is efficiency? Carnot engine is also a heat engine. And what is the efficiency of heat engine? 1 minus QR by QS. QR by QS. What is QS? What is QS? QS is heat supply. And heat supply कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है? And what is QR? QR is heat rejection. तो हीट सप्लाई कब हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। हीट रिजेक्शन कब हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में। इज इट ओके? मींस क्या, जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ये किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हम लोग मान लेते हैं TL। इज दिस ओके? इज दिस ओके? लो टेम्परेचर, क्योंकि कभी भी हीट सप्लाई कब होगा, रिजेक्शन कब होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो हमने क्या देखा था, इस सिलेंडर का टेम्परेचर क्या था, हाई था। कब, जब हम लोग इसमें हीट को सप्लाई कर रहे थे, और जब हीट रिजेक्शन हो रहा था हम लोग इसके कांटेक्ट में किसको लाए थे, सिंक को लाए थे। इसलिए ये टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। हीट सप्लाई होगा तो क्या होगा, T हाई होगा, क्योंकि हम इसके कांटेक्ट में क्या लाए थे, सोर्स को लाए थे। इज दिस क्लियर? सर नाउ Yes, sir. यस यस फॉर्मूला तो अगर कुछ हीट बाहर नहीं निकल रहा उसके लिए था ना, कौन सा फार्मूला बेटा? यही वाला एफिशिएंसी वाला। नो नो, ये इफिशियंसी कहाँ से होता है बेटा, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो लास्ट में यही आया था ना, क्या चीज? हाँ, यही आया था ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फार्मूला हमेशा किसी भी हीट इंजन पे अप्लाई कर दो। इट इज ओके? इफिशियंसी द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। हम लोग क्या किया था, W अपॉन Q सप्लाई किया था, और W क्या था मेरे पास, QS माइनस QR अपॉन QS। यहां से क्या आया था, 1 माइनस QR अपॉन QS। इज दिस क्लियर? सर इसका तो एफिशिएंसी इसका कितना आएगा, किसका? इंजन का, ये कार्नोट इंजन का? It will depend on the value of QR and QS. It will depend on the value of the lower temperature, that means the temperature of the sink and the temperature of the source. It is okay? यस सर।
Sir, if it Okay. give all heat to the sink, यस अगर उसने सब हीट सिंक को दे दिया जितना उसने लिया था, तब बेटा ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सर ये तो आइडियल इंजन है ना। तो आइडियल इंजन है तो अच्छा ये बताओ तुम ऐसा इंजन कभी बनाओगे कि जितना हीट आपने दिया उतना आप रिजेक्ट करवा दिया? पर सर ये तो सोचा हुआ है ऐसे ही ना। नहीं, ऐसा क्यों सोचेगा? इससे मैक्सिमम वर्क डन हम लोग चाहेंगे। इंजन क्यों बनाते हैं? फॉर वर्क डन। हीट रिजेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग हीट रिजेक्शन को कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि हीट रिजेक्शन जितना कम होगा क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी हमारे इंजन की। मैं ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो नहीं, इसका एफिशिएंसी 100 आना चाहिए ना। कोई कुछ जरूरी नहीं heat- 100 आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 100 आएगा, बट आज जितने भी इंजन हैं अवेलेबल उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफिशिएंसी आएगा कार्नोट इंजन का। क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम करके चले हैं कि यहाँ पे हीट रिजेक्शन जीरो है। और कौन सा हीट रिजेक्शन जीरो है? रेडिएशन वाला, फ्रिक्शन वाला। ये क्यू आर जीरो नहीं है। क्यू आर वाला तो हम लोग करा रहे हैं क्योंकि हमें कंप्रेशन चाहिए, क्योंकि हमको स्टॉक को फिर से कंप्लीट करना है। अगर मानो क्यू रिजेक्शन हम नहीं करवाते तो पिस्टन कहाँ रहता? ऊपर गया, ऊपर ही पिस्टन रहता। क्या पिस्टन नीचे आता? नहीं। तो फिर क्या होता? मशीन बंद हो जाती। ये मशीन कब चलेगा? जब पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू रखेगा, अप एंड डाउन करेगा। कभी एक चीज देखियो, कभी जहां पे आटा पिसाया जाता है मशीन को जाकर देखियो, हाँ सर। उसके देखना दो रोड अप एंड डाउन करते रहता है। दो रोड जो होते हैं रॉड, वो अप एंड डाउन करते रहता है। कभी देखे हो? नहीं, ध्यान नहीं दी। कभी जाके देखना, एब्जॉर्व करना। फिजिक्स क्या है? इन्वायरमेंट को एब्जॉर्व करने की जरूरत है। कभी देखना रॉड जो ऊपर नीचे करते रहता है। अगर सिंपल बताओ तुम, अगर मैं यहाँ पे हीट रिजेक्शन नहीं करवाता, ये पिस्टन कहाँ रहता? ऊपर। कभी नीचे आता? नहीं। तो फिर ये तो क्यू रिजेक्शन हमें करवाना है, क्योंकि हमको क्या करना है? इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, तभी तो ये इंजन बन पाएगा। इज दिस क्लियर? मैं कौन सा हीट रिजेक्शन को बोला नहीं करने के लिए? अनवांटेड हीट रिजेक्शन को रोकने के लिए बोला। इज दिस क्लियर? यस सर। मानो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या होगा? ये रेडिएट करना चलेगा सिलेंडर, तो इस हीट को रोक दो। कैसे? बाय मेकिंग इंसुलेटिंग। अब फ्रिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, हीट बाहर निकलेगी, इसको बंद कर दो। बट ये क्यू आर को बंद नहीं करना है। अगर आप क्यू आर को हीट रिजेक्शन नहीं करवाते हो तो क्या होगा? पिस्टन फिर से टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगा ही नहीं, वो नीचे आएगा ही नहीं। इज दिस क्लियर? यस सर। अब भी डाउट है क्या? नहीं सर, समझा। तो मतलब कि वो साइकिल में देखो, कर। अब देखो यहाँ से इफिशियंसी क्या होंगे? 1 minus Q rejection upon Q supply. This efficiency of Carnot cycle is equal to 1 minus TR या TL lower temperature upon TH higher temperature. Is this clear? This will be the efficiency, and efficiency will depend on heat rejection or heat supply, or the lower temperature of the Carnot engine and the higher temperature of the Carnot engine. Is this clear? Anyone have any doubt in Carnot cycle? किसी को कोई डाउट है कार्नोट साइकिल में? नो सर। नो सर। नहीं? नो सर। या डाउट है? किसको 100% समझ में आ गया? अब देखो यहीं पे हम स्टर्लिंग इंजन को पढ़ लेते हैं, ठीक है? इट इज क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्टर्लिंग इंजन को पढ़ लेते हैं।
देखो स्टर्लिन इंजन क्या है, वो एक सिमिलर टाइप ऑफ कार्नोट इंजन है, कहीं ना कहीं उसकी जो इफिशियंसी होता है ना थोड़ा बहुत क्लोज होता है किसके, कार्नोट इंजन के। देखो दुनिया में जो है ना हर लोग जो इंजन बनाते हैं ना वो क्या प्रयास करते हैं जानते हैं, हर एक आदमी का प्रयास होता है कि वो जो इंजन को कंस्ट्रक्ट करे उसकी इफिशियंसी कहीं ना कहीं कार्नोट इंजन की क्लोज हो। तो उसी वे में एक इंजन कंस्ट्रक्ट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्लिंग इंजन। इस इंजन का क्या समहाउ कुछ क्लोज था किसके, कार्नोट इंजन के इफिशियंसी से। इट इज क्लियर। अब देखो आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है It's coming. बेटा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रयास किया गया कि जो कार्नोट इंजन है, अब देखो हमने जब कार्नोट इंजन को पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे कि आइडियाबैटिक क्या हो, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो एंड आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो। क्या कोई सिस्टम कभी भी आइडियाबैटिक बनाया जा सकता है? दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम है जहां पे तुम फ्रिक्शन को खत्म कर दो, जहां पे तुम रेडिएशन को बंद कर दो? नो सर। नहीं। तो कार्नोट इंजन कैसा रहा, एक इमेजिनरी इंजन रहा, ठीक है। तो हमने क्या प्रयास किया, जो स्टर्लिन जो एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर था, उसने क्या किया कि समहाउ उसके क्लोज जाने का प्रयास किया। और वो क्लोज कैसे जाते हैं, जहां पे कार्नोट इंजन में आइडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा था, तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन और आइडियाबैटिक एक्सपेंशन को उन्होंने रिमूव किया, किससे, आइसोकोरिक एक्सपेंशन एंड आइसोकोरिक कंप्रेशन से। कुछ समझ में आया? नो सर। पर मैंने क्या बोला, कार्नोट इंजन में क्या था, 4 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस क्या था, थर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड पांचवा प्रोसेस एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस तो आप बना सकते हो, है कि नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम कर दो, हीट्स क्या होगा वहां पे, सो थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब बताओ क्या आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कभी पॉसिबल है? नो। क्या आप रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो? कितना भी प्रयास कर लो, No. यू कैन नॉट डू दिस। उसी तरह क्या आइडियाबैटिक कंप्रेशन पॉसिबल है? नो। नहीं है। तो क्या है, तो कार्नोट इंजन क्या रियल में पॉसिबल है? नो। नहीं। तो क्या किया गया, कार्नोट इंजन के क्लोज, ठीक है, कार्नोट इंजन के क्लोज एक इंजन को बनाया गया जिसका नाम दिया गया स्टर्लिन इंजन। और क्या किया गया, जो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के जगह पे आइसोकोरिक एक्सपेंशन किया गया, और आइडियाबैटिक कंप्रेशन की जगह पे आइसोकोरिक कंप्रेशन किया गया। इज दिस क्लियर? अभी समझ में नहीं आया? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? Volume constant. हाँ, यस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको कैसे याद करोगे, कोरिक, सेंटीमीटर क्यूब कहीं से आता है, सी से, कोरिक सी से सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है, को हम लोग रिप्लेस किए किससे, आइसोकोरिक प्रोसेस से, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस से। इट इज क्लियर? और इस दोनों प्रोसेस को रहने दिए। मतलब स्टर्लिन इंजन में भी 4 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, पहला होंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होंगे आइसोकोरिक एक्सपेंशन,
तीसरा होंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होंगे आइसोकोरिक कंप्रेशन। दीज आर द 4 प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन टेल मी Stirling engine. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now look at the graph of the Stirling engine. अब देखो जो Stirling engine है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी के ऊपर चलता, पूरा क्लोज सिस्टम होता है। क्या होता है Stirling engine? एक क्लोज सिस्टम होता है। It is okay? एक क्लोज सिस्टम होता है Stirling engine, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इस टाइप का सिलेंडर होता है, ठीक है। एक होता है हॉट सिलेंडर और एक पार्ट होता है कोल्ड सिलेंडर। ये क्या है, कोल्ड है, ठीक है। दोनों में क्या है, पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अप डाउन ये दोनों करते रहता है, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो कुछ भी हीट हो, चाहे तुम लाइट जला के भी हीट दोगे ना, एक कैंडल का हीट दोगे ना, ये इंजन मूव करने लगता है, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ स्टर्लिंग इंजन होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टर्लिंग इंजन होते हैं, जैसे अल्फा टाइप ऑफ स्टर्लिंग इंजन, बीटा टाइप ऑफ स्टर्लिंग इंजन। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टर्लिंग इंजन होता है, ये सिलेंडर के अरेंजमेंट के बेस पे है। अगर दोनों सिलेंडर अलग अलग हैं, कोल्ड सिलेंडर और हॉट सिलेंडर दोनों अलग हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा स्टर्लिंग इंजन। अगर दोनों एक ही में है, इसको बोलते हैं अल्फा स्टर्लिंग इंजन। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत स्टर्लिंग इंजन के बारे में एक आइडिया लेना है। क्या कि स्टर्लिंग इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन? एक होते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक होते हैं आइसोकोरिक एक्सपेंशन, दूसरे होते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जो चौथे होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोकोरिक कंप्रेशन। इज दिस क्लियर? और इसका हमको पीवी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। अब देखो आइडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा, मतलब क्या, इस तरह से। एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर विल टेल मी डिक्रीज एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये 1 to 2 क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। और इस प्रोसेस में क्या होगा, सप्लाई ऑफ हीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब क्या, वॉल्यूम विल कांस्टेंट, कुछ प्रोसेस ऐसा होगा। इज दिस क्लियर? तीसरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना होगा, ठीक है। चौथा प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक कंप्रेशन है ना, हाँ जी। फिर कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर विल इंक्रीज, बट आइसोकोरिक कंप्रेशन है, मतलब प्रेशर विल इंक्रीज बट द वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ये प्रोसेस क्या होंगे, कुछ इस तरह होंगे। ये हो गया पीवी डायग्राम ऑफ द स्टर्लिंग इंजन। इज इट ओके और नॉट? यस सर। Sir, second 2 to 3. Sir, यस, 2 to 3. Not ये clear. प्रोसेस Yes. देखो, ये सेकेंड प्रोसेस है ना। सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा, आइसोकोरिक एक्सपेंशन हो रहा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर इन द एक्सपेंशन प्रोसेस प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना। एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, बेटा मैंने आपको बोल दिया, हमेशा याद रखना, एक्सपेंशन मींस प्रेशर विल डिक्रीज एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज। इज इट ओके? कंप्रेशन मींस प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। इज इट ओके और नॉट? यहाँ क्या आइसोकोरिक एक्सपेंशन है, मतलब क्या, प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन उससे पहले एक शब्द लगा हुआ क्या, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये प्रोसेस क्या है,
सॉरी एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो, इन द एक्सपेंशन प्रोसेस प्रेशर विल डिक्रीज, ये इस चीज को लिख लो। एक्सपेंशन में प्रेशर विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। कंप्रेशन में प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। अब ये 2 to 3 प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक एक्सपेंशन है। मींस बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन द प्रेशर विल डिक्रीज एंड बिकॉज हियर इज द आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ये देखो यहाँ पे प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा? हम नीचे आएंगे तभी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम क्या है? इस लाइन पे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, इसलिए ये क्या होंगे? ये ग्राफ होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? Sir, here temperature will increase also. व्हाट? Temperature टेम्परेचर? नो, will टेम्परेचर की यहाँ पे बात नहीं की गई है, सिर्फ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर में वैरी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रही है। इज इट ओके? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। yes. आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू mRT। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अब जब अगर हम प्रेशर को चेंज करें, ये किसको अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर को। Sure. इज दिस क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? तो ये हो गया आपको स्टर्लिन इंजन, ठीक है। तो आज की क्लास को, इसके बाद आपका क्लास है। हाँ सर। ओके, किसी कोई डाउट है आज की क्लास में?